اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد کیسے کرے ہماری زباں عید کا روز اور تیری شان. نام تیرا ہے روح کی تسکین یا اللہ. نام تیرا ہے روح کی تسکین، ذکر تیرا ہے درد کا درما، اور زیست کی ایک ایک ساعت میں ہم رہیں تیرے تابعے. فرما ان الامر کلہ للہ، بے شک اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے. تو جس کا اختیار ہے، جو خالق و مالک ہے، عبادت بھی اس کی، اطاعت بھی اس کی. اور جناب فصلی لربک وانحر، قربانی کا حکم بھی وہی دیتا ہے. ARYQ TV کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے وہ تمام بہنیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں سیدہ ندا نسیم کاظمی عید قرباں کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ سب کو اور آپ سب کو میری جانب سے عید کا دن بہت بہت مبارک ہو. ہم عید منا رہے ہیں اور آج ہے جناب عید کا پہلا دن. یہ عید 3 دن منائی جاتی ہے، اور جب بات ہوتی ہے کہ QTV کے ستارے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سب کو ہیں کتنے پیارے، وہ نایاب چہرے جو کہ معتبر ہیں، محترم ہیں، معزز ہیں، آج ہمارے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں. اور یہ اب QTV کی روایت ہے، یعنی ہماری خوشی جو ہے اور سیلیبریشن جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ آج یہاں موجود ہیں. کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ان سے ان کی اندر کی باتیں ہیں، ان کے قلبی جذبات، ان کی کیفیات، یہ کب سنجیدہ ہوتی ہیں، یہ کب رنجیدہ ہوتی ہیں، یہ کب خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی کا اظہار کیسے کرتی ہیں، آج ہم جانیں گے. اور میرے جو مہمان ہیں ان کا آپ کو تعارف کروا دوں. میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ناہید ابرار صاحبہ. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپ کو عید مبارک ہو. بہت 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 شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ. اور ARYQ TV دیکھنے والوں کو سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جناب عید کا دن ہے، معطر ہے، اور ہم سب خوش ہیں. اور اس پرمسرت موقع پہ ایک ہری ہری ہماری بڑی پیاری سی بہن، اللہ آپ کو ہرا بھرا رکھے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. بہت اچھی ہوسٹ ہیں، بہت اچھی نعت خواں ہیں، اور ابو آل سب سے زیادہ اچھی یہ انسان ہے. ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ سحر اعظم بھی تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی بہت عید مبارک. جناب ہماری جو آج کی تیسری مہمان ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، آج میں جو ان کا نام اناؤنس کرنے لگی ہوں وہ ہے سعدیہ دانش رضا. بہت مبارک ہو آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آج کا دن مبارک ہو. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ہماری بہت پیاری اور ہم سب کی لاڈلی محترمہ افضا نوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو بھی آج کا دن مبارک ہو. اور ان کے ساتھ ہماری بہت پیاری، مجھے ان میں حوریہ کا رنگ بھی نظر آتا ہے، اور مجھے ان میں ادب بھی نظر آتا ہے. ان کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاطمہ شاہد بھی تشریف فرمائے. جناب اب میں آ جاتی ہوں اپنے دائیں جانب. تو اگر پہلا نام نوجوان نسل میں یہ ابھرتا ہوا نام، ان سے سب واقف بھی ہیں، ہم ان کی گاہے گاہے پوسٹ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور بڑا اچھا بولتی ہیں اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں. زرمینہ ناصر خاکوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. اور ان کے ساتھ ہماری پنکی ہماری بہت ہی پیاری. اور QTV پہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور جن سے مل کے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں. ہمارے ساتھ شگفتہ عمران موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ہو پیاری السلام. بہن. الحمدللہ. تو اللہ تمہیں خوش رکھے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ہماری بہت پیاری، اور یہ بڑی خاص ہیں، اور یہ خاص لوگوں کا خیال بھی رکھتی ہیں. اب ان سے پوچھیں گے جب میں سوالات کی سمت آؤں گی. انہیں بھی میں سلام عرض کر رہی ہوں، وہ کہ چھوٹی ہیں لیکن آداب کے لحاظ سے بہت بڑی ہیں. ہم سلام عرض کر رہے ہیں معروف اختر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو بیٹا؟ الحمدللہ. آج کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپا یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ قربانی کی بات ہو رہی ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ٹوٹ کے اللہ تبارک و تعالی
سے محبت کرتے ہیں. اور بیسیکلی ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا ہر دن خالصاً لوجہ اللہ, جو بھی وہ کام کرتا ہے, اب وہ قربانی کر رہا ہے, وہ آج کا دن بنا رہا ہے, وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے, لیکن خالصاً لوجہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. آپ کیسے دیکھتی ہیں قربانی کے جذبے کو؟ ڈاکٹر نیدا صاحبہ, میرے برابر میں عالم اسلام کی ممتاز نعت خواں سحر صاحبہ بھی موجود ہیں کہ ان اندھیروں سے کہو اب اپنا ٹھکانہ کر لیں, ہم نئے عزم سے آغاز سحر کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کے جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ یا تو کسی اسلامی واقعے کی یادگار ہوتے ہیں, یا مذہبی تقریبات سے منسلک ہوتے ہیں, یا کسی بڑی ذات سے منسوب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب ہم عید الاضحیٰ کے تہوار کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی, اور ایسی قربانی دی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی, تو اللہ نے اس قربانی کو اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں نے عالم کو اس قربانی کو بطور عبادت کے طور پر کرنے کا حکم دیا. اور اللہ کی راہ میں قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جو خشوع و خضوع کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بال کے بدلے اسے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی. یہ ایمان کا تقاضا ہے, بندگی کی علامت ہے کہ ہم خشوع خضوع اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کریں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو سلام عقیدت پیش کریں. کیا بات ہے آپا, ماشاء اللہ. ہر سال قربانی کی عید آتی ہے, اور یہ جو قربانی کا جذبہ ہے مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں, اور ہر سال ہمیں یہ بڑے خاص پیغام بھی دے کے جاتی ہے. تو جو فلسفہ قربانی ہے, جو تصور قربانی ہے, ہاں, انہوں نے جس طرح بات کی آپ اسی کو لنک اپ کرو, لیکن اس فلسفے پہ بات کرو. میں چاہتی ہوں کہ جو آج کی ماں ہمیں دیکھ رہی ہے, جو بہن بیٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو گھر کے بیسک یونٹس اس وقت ٹی وی کے سامنے, کیونکہ ظاہر ہے خواتین کے لیے کر رہے ہیں تو ہماری ویورشپ بھی زیادہ وہی ہے نا, تو کیسی ہونی چاہیے بھائی آج کی مائیں؟ بہت شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو اور تمام ویورز کو میری جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک. عید الاضحیٰ ایک بہت خوبصورت تہوار جس میں اخوت کا رنگ بھی نظر آتا ہے, جس میں بھائی چارے کا مظاہرہ بھی نظر آتا ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ خوشیوں کی اور محبتوں کی تقسیم کا ایک خوبصورت موقع معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ نے بات کی آج کی مدرس کے حوالے سے, ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے سیکھنے سمجھنے کے یہ خوبصورت مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. میں سمجھتی ہوں کہ اخلاص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تخلی ہوتی ہے تو وہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے. یعنی ہم نے خود کو خالی کرنا ہے. جب ہم خود کو تمام روحانی بیماریوں سے, ایگو کو بھی تو قربان کر رہے ہیں نا, ایگوئسٹک ہونے سے خود کو بچاتے ہیں, روحانی بیماریوں سے اپنے دل کو صاف کرتے ہیں, اپنا تزکیہ کرتے ہیں, اچھی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, اچھی گیدرنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں, تو تزکیہ نفس ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہماری توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد پاک مخدوم محمود مستوار قلندر کو سلامت رکھے, آپ فرماتے ہیں جو توجہ رکھتا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ہماری توجہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی سمت ہوتی ہے, تبھی تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے نا. اس پاک بارگاہ سے نگاہ لطف و کرم کی وہ عنایت, وہ رحمتوں کی برکھا ایسی عطا ہوتی ہے کہ دل کی دنیا بدل سی جاتی ہے. تب عمل بھی اچھا ہوتا ہے, کیونکہ نیت خالص ہو گئی نا, عمل احسن ہوا, اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ایسے پھول اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے جو آپ معاشرے میں تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں. کیونکہ اچھے مسلمان بھی تبھی بن سکتے ہیں, اچھے انسان بھی تبھی بن سکتے ہیں. اور جب آپ خوشیوں کے وہ پھول معاشرے میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں, تو جو لوگ معاشرے میں خوشیوں کے پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو کنیکشن ہے نا, ویدر وی آر ڈوئنگ اینی تھنگ,
हम जो भी अच्छा अमल कर रहे हो, हमारी तवज्जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पाक बारगाह की तरफ, उस मोहब्बत की तरफ रहनी चाहिए, क्योंकि बेशक उनकी सरकार में भीड़ थी पर करम भी था, महवे इल्तिजा लोग थे, मैं था, हरम भी था, लिखते जाते थे सबका मुकद्दर महमूद, जाने आलम के पास लौह भी थी, कलम भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ सहर आज़म मौजूद हैं और बोलना भी जानती हैं, पढ़ना भी खूब जानती हैं। कुर्बानी, एक माँ, अब मैं स्कॉलर से हटके एक माँ की तरफ आ रही हूँ, एक अजीम माँ जिसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और जिसने आजमाइशों का भी सामना किया है, और फिर भी मुझे वो बुलंद हिम्मत नज़र आती है, एक चट्टान की तरह माशाअल्लाह। वो खड़ी है। वो क्या पैगाम देगी? कुर्बानी क्या है? कुर्बानी, अगर हम जब इस्लामी शायर की बात करते हैं या इस्लामी तालीमात की बात करते हैं तो यकीनन अलामती तौर पर तो हम देखते हैं कि ये जानवर को ही कुर्बान करने का नाम है, लेकिन जो कहते हैं ना कि इसके बिहाइंड जो पैगाम है या इसके बिहाइंड जो ट्रेनिंग है वो यकीनन यही है कि कुर्बानी सिर्फ उस मखसूस दिन के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर अमल के लिए है। आपकी ज़िंदगी के हर मामले के साथ ये कुर्बानी का मामला जो है जुड़ा हुआ है। और अपने एक माँ के हवाले से बात की तो मैं समझती हूँ कि माँ चाहे तन्हा हो या माँ के साथ लोग हों या माँ के साथ वालिद का भी साथ हो, आई मीन शौहर का भी साथ हो या ना हो, माँ की कुर्बानियाँ, माँ की तरबियत का फ़र्ज़ वो उसी तरह से अपनी जगह पर मौजूद रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो किसी मैदान में अकेली होती है तो यकीनन ज़िम्मेदारियाँ उसकी बढ़ जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला की ही तरफ से ये दी हुई तौफ़ीक़ होती है, अल्लाह ताला की ही तरफ से दिया हुआ सब्र होता है, उसी की तरफ से दिया हुआ हौसला होता है कि आपके लिए आसानियाँ होती चली जाती हैं। और फिर जब आप सब जैसे लोगों का साथ हो तो मंजिलें और भी आसान होती चली जाती हैं। जब आप सब जैसे लोगों की दुआएं साथ हों, मेरे नाजरीन जो मुझे उस तरफ देख रहे हैं, इन सब की इतनी दुआएं, इतनी मोहब्बतें और इनका इतना प्यार मेरे साथ है कि यकीनन मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ, मुझे हौसला मिल जाता है। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सलामत आपको रखे और ऐसे ही आप सहर ने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल भी देखे और उनके हस्बैंड बहुत, लेकिन ये बहुत हौसलामंद खातून है। अपने बच्चों को देखिए, आपने माँ की तरबियत की बात की, देखिए निदा, जब ईद उल अज़हा का त्यौहार आए तो माँ का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को नहीं कि आज पुप्पी ने कह दिया खाला के घर जाना है, मामू के घर जाना है, ये त्यौहार आ रहा है, पहले अपने बच्चों को ईद उल अज़हा के दिन की अहमियत बताएं, बीबी हाजरा की कुर्बानियाँ बताएं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार बताएं और अपने बच्चों की तरबियत करें कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने से दरेक नहीं करना चाहिए। जब एक माँ अपने बच्चे की अच्छी अंदाज से तरबियत करेगी, उनको दीन से लगाव पैदा करेगी, तो खुद माशरे के दीनदार मुसलमान फरशनास शहरी बनेंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। आपा ब्रेक लीजिए, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अब ब्रेक का टाइम हुआ है, कुछ देर बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। जी जनाब, ईद कुर्बान सब देखने वालों को, मेरी सारी बहनों को, मेरे सारे व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, ARYQ TV की विसातत से मुबारक हो। और ईद का दिन है और बड़े प्यारे प्यारे पैगामात हैं जो हमें मिल रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ सादिया दानिश भी मौजूद हैं। सादिया, आपका इकबाल बुलंद हो, आप क्या मैसेज देंगी? सादिया के लिए कुर्बानी क्या है? कुर्बानी अपनी खसलतों को कुर्बान करें, सारी खसलतों को? हाँ। या बुरी खसलतों? बुरी खसलतों, अच्छी खसलतों को नहीं, बुरे रवैयों को, लहजों को, अपने आप हसद को, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कुर्बानी में, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इन सबको कुर्बानी। ये सादिया दानिश की दानिशमंदी में कुछ इजाफा नहीं हो गया? सादिया दानिश, अच्छा ये दानिश साथ में लगने से फर्क पड़ता है ना भाई। देखिए, आई नाम का असर होता है, दानाई ट्रांसफर हो रही है। अफजा, कुर्बान कीजिए किसको? निदा, मैं ये कहना चाहूँगी कि कुर्बानी इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह की राह में अपनी बहुत कीमती चीज़ को कुर्बान किया जाए। अब जिस तरह से सादिया ने बोला कि बुरी खसरतों को कुर्बान कीजिए, तो मैं इनकी बात को सेकंड करूँगी कि अपनी बुरी आदत को भी कुर्बान कीजिए। इस तरह के अपने अखलाक को इतना बेहतरीन कीजिए कि आपके दुनिया से जाने के बाद लोग आपको आपकी अच्छी आदतों, आपकी अच्छी अखलाक से याद रखें। ये सबसे बेहतरीन ज़बरदस्त। फातिमा शाहिद, कुर्बानी का क्या फ़लसफ़ा है फातिमा की किताब में? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपने अंदर जो सबसे बुरी जो हमारी आदत है, अल्लाह की नाफरमानी,
हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले कुर्बान करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में भी हमें बुलंदी मिले और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। अपनी इस बुरी आदत को जो है हमें कुर्बान करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। शगुफ्ता इमरान। मेरी नज़र में जो कुर्बानी है, अगर मैं जिस चीज़ को देखती हूँ, वही बात जो अफ़ज़ा ने कही कि अपनी प्यारी चीज़ जिसे हम बहुत चाहते हैं, औलाद से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, जैसे बीबी हाजरा सलाम अलैहा पेश कर रही हैं उन्हें सजा कर के ले जाइए। एक माँ के लिए औलाद बहुत कीमती सरमाया है। इसी तरह हर इंसान के अंदर जो नफ्स है वो ऐसा कीमती हीरे की तरह है कि आप कहीं भी जाएं उस नफ्स को हर जगह आगे आगे पाते हैं। आपके बोलने में, आपके सुनने में, आपके देखने में, आपके औलाद में, आपके शौहर में, आपके भाई बहनों में आपका नफ्स जगह जगह रहता है। तो उसका तज़किया हो, उसका तज़किया हो, और फिर जो अंदर से हमें एक हिट करती रहती है, नहीं ये यूँ होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी मैं कह लें, अपनी अना कह लें, अपनी अना की तस्कीन के लिए हम वल्लाह आलम कितनी तकलीफ़ें जे जाते हैं ज़बान की नोक से, किसी भी तरह से उस चीज़ को कुर्बान करें, उस नफ्स को पे हावी हो जाएं और अपनी ज़ात का तज़किया करते हुए ये सोचें कि नहीं यार इट्स ओके, जाने दो। जब ये रखेंगे जाने दो, तो फिर कुर्बानी आपको देनी नहीं पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि लोग आपके लिए वो हर चीज़ कुर्बान करते चले जाएंगे जो वो नहीं कर सकते। मारूख, जैसा कुर्बानी किस चीज़ की? शगुफ्ता बाजी ने भी जैसा कि कहा कि अपनी अना को कुर्बान करें, अपनी मैं को। बस वो हम लोगों में होता है चीज़ के बस नहीं मैं ये मैं वो, और उसकी खातिर हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत गलतियां कर जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये चाहिए कि हम अपनी मैं को जो है वो कुर्बान कर दें ताकि फिर हम सबको अप्रिशिएट कर सकें उस हवाले से। क्या बात है, मारूख ने बड़ा सीधा प्यारा जवाब दिया है, बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि कुर्बान कर दिए दूसरों की खातिर चीजें। ये बताओ, अगर मलिका तुमसे कुछ मांगती है या कोई जोड़ा मांगती है या कोई तुम्हारी पसंद की चीज़, तो कुर्बानी देती हो नहीं देती हो? मेरी बहन के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मलिका नहीं, जान देना आसान है, मलिका से मांगती है। आसान नहीं है। नहीं नहीं मांगती। हम दोनों एक बात तो ये है कि हम दोनों बाजी, मांगते हैं। मैं ये कहूंगी कि कुर्बानी देना भी आसान नहीं है, अपने निवाले खिलाना भी आसान नहीं। वाकई बहुत बड़ा ये सेक्रीफाइस है और दानिश सेक्रीफाइस दानिश मंदी। भाई क्या हो दानिश भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी बच्ची बदल गई भाई। आमीन आमीन आमीन। देखिए ये चीजें वक्त के साथ साथ इंसान को सिखाते हैं, वक्त हालात बहुत कुछ सिखाते हैं। हालात कहते हैं ना, बादाम खा के अकल नहीं आती जितना के ठोके खा के। भाई बड़ी बड़ी बातें नहीं बात कर रही है। फ्रूट्स को। वाह 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 वाह, ये चीजें हैं। शुरू में कह दिया कि दानिश नाम का बड़ा असर जो बड़ा असर हमें नजर आ रहा है। अल्लाह माशाल्लाह। पाक दानिश को सलाम। बादाम का कम है, दानिश निदा साहब, एक ये भी तो फलसफा है ना कि इबादतें सिर्फ मुसल्ले पे नहीं होती, क्या बात रखना भी इबादत है। असल यही तो इबादत है। पेशानी से मिलना वाह, इबादत है, वाह, माफ कर दें और माफी मांगे। बिल्कुल, सबसे वाह, बड़ी वाह, इबादत बस है। तो फिर एक बात डिसाइडेड है ना आपा, कि आपकी बात से ये कह रही हूँ कि जितने भी बादाम है ना शादी इकबाल के पास दानिश भाई के पास जाएंगे। शादी बिल्कुल, मैंने नाम गलत दे दिया, दोबारा लीजिएगा ये। मजेदार है, सही है ना? हाँ। हाँ हाँ सही है ना, इसीलिए तो तुम दानिश भाई को ला रही हो ना। नहीं, वो मैंने उसको सादिया पता नहीं दानिश क्या बोल दिया मैंने। दानिश ही तो बोला था, सही बोला। ठीक है। अच्छा चलो, ये तो को देना हमने पड़ेगा, बात कर ली कि कुर्बानी के फलसफे के ताल्लुक से, और चूंकि मैसेज जाना चाहिए इसलिए हमने मैसेज रखा। अब हम कुछ सवालात कर रहे हैं और हम सहारा आजम से शुरू करेंगे, क्योंकि जो है वो मुझे लगता है कि ये बड़े अच्छे जवाब देने वाली है ना। तो और आप सब समझ जाएंगे कि कैसे। क्यों टीवी की अम्मी कौन है? ले किस सेंस से पूछा जा रहा है अम्मी का? भाई जो आपको लगता है कि वो बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं और सबके लिए हमदर्द हैं, है ना भाई, सबका ख्याल रखती हैं। सवाल अच्छा है। अच्छा, अम्मी का जो एक वो लफ्ज है ना, तो उससे क्योंकि जाहिर मैंने है- माओ की बात की ना, तो मेरे हाँ। ध्यान मैंने कहा यही कर लो, चलो भाई क्यों टीवी की अम्मी देखो, अम्मी जो है ना, अम्मी वाले मनसब पे उसी को होना चाहिए जो बहुत सीनियर भी हो यहाँ, ठीक है, और जो सबके मिजाज को समझता भी हो। जवाब देना है भाई। शुरू से हाँ जवाब भी तो दे रही हूँ, हाँ, थोड़ा सा ग्राउंड तो बना दो अच्छा ना। ग्राउंड जल्दी जल्दी जवाब देना है, पड़ेगा। जल्दी जल्दी बाकी जवाब लोग देना है। नाराज ना हो। मुझे लगता है क्यू टीवी में अम्मी वाला या बड़ा वाला जो रोल अदा करती है ताबिंदा आपा। ताबिंदा आपा। क्यों टीवी की अम्मी? ताबिंदा। अब्बा का भी तो नाम लीजिए। हाँ? अब्बा का भी तो नाम लीजिए। अच्छा क्यों टीवी के अब्बा कौन है? मशवरा तो सभी देते हैं ना। क्यों टीवी के आपा से पूछिए ना हाँ, उसका। आपा क्यों टीवी के अब्बा कौन है फिर? आपा बताएं, फंसी हैं आप देख लें। नहीं, देखिए, मशवरा देने के लिए मेरी अपनी राय है कि अम्मी अब्बा का होना शर्त नहीं, बार दफा छोटे भी इतना वो वाली अच्छा खसलत मशवरा होनी देते चाहिए हैं। ना। हाँ, हाँ। वो मतलब लाखों में एक होता है। हाँ। तो ऐसी बात होती, तो निदा बच्ची जो है मेरी, ये भी मुझे बहुत अच्छे मशवरे देती है, इधर से भी सब मुझे बहुत आपा अच्छे। कहीं आप मुझे अब्बा तो नहीं बना रही। सवाल बोल कर दिया आपा, हाँ, सवाल बोल हो बोल गया। कर दिया अच्छा आपा। किसका फैशन सेंस अच्छा है?
अच्छा मुझसे पूछा जा हाँ, रहा क्यों टीवी पे किसका फैशन सेंस अच्छा है? है हुरिया का मुझे हुरिया लगता का हाँ, मेरे माइंड में भी यही है। ज्यादा आपको मेकअप अट्रैक्ट करता है कि ज्वेलरी? ज्वेलरी, क्योंकि हम लोग जिस तरह से ड्रेसिंग करते हैं ज्वेलरी उसमें इतनी हाईलाइट तो होती नहीं है, मुझे लगता है पफिंग जिसे कह लें आप, और नॉट मेकअप। ज्यादा तैयार होने का शौकीन कौन है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ माशाल्लाह सब कोई बहुत अच्छा सेंस भी है और सभी बहुत अच्छा तैयार होते हैं। मैं क्यों ना आपको देखूं। साबुन किसका स्लो है? साबुन किसका स्लो है? मैं कहाँ देख रही हूँ? खामोश तबा कौन है? कुछ ना कहूंगी मैं। खामोश तबा कौन है? खामोश कौन है वो भी देखने में कहाँ सोचना देख रही पड़ेगा। हूँ। थोड़ा सा ऑपोजिट बताऊंगी मैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, समझ गई ना? समझ गई। अच्छा ये बताइए कि खुश तबई या सादगी? खुश तबई। खरीदारी या बचत? बजट। बचत। बिल्कुल। असफार या आराम, घर पे रिलैक्स चिल करना? बहुत ज्यादा आराम नहीं, मतलब मेरा ख्याल से बैलेंस दोनों का। पसंदीदा खाना क्या है? दाल चावल। रंग? रंग सफेद। मकाम, कहाँ जाना चाहती हैं? पसंदीदा मकाम? समंदर। मशरूब पसंदीदा? लाल शरबत जो अपना ट्रेडिशनल है। खेल पसंद? खेल मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। पसंद नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपा, मैं आपकी समझ आ रही हूँ, जी, हमने बिल्कुल। आपने अम्मी वाली बात तो बता दी। अब आपा के लिए ज्यादा खामोश तबी या खुश तबी? खामोश तभी। खामोश तबी। बेहतरीन इंसान कैसा होना चाहिए आपकी निगाह में? जो मुनाफिक ना हो। क्या बात। ये इसकी बहुत प्यारा आंसर। एक खास क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल। अच्छा, फैशनेबल या सादगी? गुड फैशन सेंस और सादगी? इतदाल पसंद है। इतदाल पसंद। घर पे चिल करना पसंद करती हैं या बाहर जाना पसंद करती हैं? असफार? तन्हाई। तन्हाई यानी कि घर। पसंदीदा खाना क्या है आपका का? जी, पसंदीदा खाना? दाल चावल। फ्रूट? बस सादा खाना है तो अच्छा पाकिस्तानी लगता डिश है। हो गई। और कोई फल जो बहुत पसंद हो आपको? आम। आम पसंद है। सब्जी? मेरा आलू। आलू पसंद है आपको? ये भी मेरा है। अरे जल्दी भी तो पक जाते हैं। आलू का पसंदीदा रंग कौन सा है आपका? ब्लैक। अच्छा, पसंदीदा लिबास क्या पसंद, ज्यादा पहनना क्या पसंद करती हैं? सलवार कमीज। सलवार कमीज पहनना पसंद करती हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका पसंदीदा मकाम जहाँ आप जाना चाहती हैं? अल्लाह मुझे बार बार बुलाए, और जब भी मेरे पास रिस्के हलाल ऐसे जमा होते हैं सुभान अल्लाह। तो मैं टिकट उम्रे के लिए करा लेती हूँ। इस साल नहीं गई हूँ मैं, शायद मैं रबीउल अव्वल के बाद फिर जाऊँ। आपका जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ क्या है? खौफ नहीं कहें, एक हकीकत है कि जिंदगी मुख्तसर है। हर लम्हे की कदर कीजिए, अपने लोगों की कदर करें और अपनी अखलाकी कदरों को कभी फरामोश क्या न बात। करें। वाह क्या बात, क्या बात। ज़रमीना आपकी समझाऊंगी, और ज़रमीना तो मुझे नज़र भी आता है और मुझे मालूम भी है कि अगर आप सब देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा फैशन सेंस किसका अच्छा है क्यों टीवी पे? सभी अपने मुताबिक अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा तैयार होते हैं। वैसे आई लाइक हुरिया। याज। सबसे ज़्यादा तफरी कौन है क्यों टीवी पे? मेरे बराबर में कोई बैठा है, नाम नहीं अरे इतनी खामोशी क्यों? शगुफ्ता के होते तो कोई खामोशी होती नहीं है। हाँ भाई, नाम मखसूस है। क्यों टीवी की बबली? क्यू टीवी की बबली सहर आजम। और सहार क्या कहेंगे क्यों टीवी की बबली? शगुफ्ता। शगुफ्ता ये बताओ कि, अच्छा पहले मैं आपसे ये पूरा पूछती हूँ, ये बताओ कि दोस्ती क्या है आपकी नज़र में? एहसास, पसंद, एहसास का रिश्ता। दोस्त? निगत। आई लाइक हर, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, शी इज़ वेरी लविंग। और मेरी बहुत अटमोस्ट डिज़ायर है निदा कि मैं उसके साथ, निगत के साथ बार बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये मेरी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। दोस्ती क्या है शगुफ्ता के लिए? जिंदगी। शगुफ्ता को खामोश रहना। वैसे तो निदा हमें- साहिबा, मैं तुम मोहब्बत को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे दोस्त भी किस्मत वालों को मिलते हैं। जिसको एक अच्छा दोस्त मिल गया ना तो अच्छा दोस्त हमें बुराइयों से एक हो रोकता है। दोस्त पर नेक हो। हाँ। सादिया, आप सहार आजम के लिए कुछ बोलेंगे? सहार आजम के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इन्हें का मज़ीद
लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, आमीन। इनकी ज़िंदगी को आसान करे। आमीन। इतना स्ट्रगल कर रही हैं, जो कैमरे के सामने तो हम कुछ और होते हैं, जो मेहनत और स्ट्रगल हो रहा होता है वो सबको नहीं पता, वो वही जानता है जो साथ में कनेक्ट होता है। जैसे दोस्ती की बात हुई तो कभी कभी हम लोग आपस में भी क्यू टीवी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सारे हम एक फैमिली है हमारा छोटा, और हर बात एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, तो कुछ बातें मिलती है तो फिर ये होता है कि दुआ गो हैं हम इनके लिए भी और सबके लिए भी। अल्लाह ताला सब बहनों बेटियों के नसीबों को अच्छा करे, आमीन आमीन। खुशियाँ अता करे और इनकी ज़िंदगियों को, सबकी ज़िंदगियों को आसान करे। आमीन। और जो ख्वाहिशात है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन सब के लिए कि अल्लाह ताला उनके लिए बहुत जल्दी वो रास्ते जो है ना बना रहे, वार करे। आमीन। उनकी वो खुशियाँ अल्लाह पाक जल्दी दे दे, ताकि उन्हें जो है ना जीने का एक और हौसला मिल जाए। भाई वाह दानिश भाई वाह, क्या बात। मेरे मुंह की बात आज मुझे लग रहा है कि सारा क्रेडिट आप मेरे हस्बैंड क्या बात है, दानिश भाई ने ये जो दानाई ट्रांसफर हुई है ना, अब क्या बात है, क्या बात है। ब्रेक ले लो इसी बात, जज़ाकल्लाह। ब्रेक ले लो। मिलते हैं सादिया दानिश रजा के साथ एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी जनाब, हंसते मुस्कुराते खुशी मनाते सेलिब्रेट करते हुए एक बार फिर से हाजिर हैं और हम मना रहे हैं जनाब बड़ी ईद और बड़ी खुशियां हैं। प्यारे प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो चमक रहे हैं और पूरी आबोताब के साथ दमक रहे हैं। मैं अफजा नवीद की समताऊंगी, जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, देखो भाई देर नहीं करनी है, सही है। क्यों टीवी में सबसे ज्यादा शरारती कौन है? शरारती मुझे ऐसा लगता है सादिया काज़मी। हाँ, अच्छा। बबली कौन है? हम क्यों भूल TV गए का? थे। बबली भी सादिया काज़मी को कह सकते हैं, उसका शगुफ्ता। गुफ्ता। अम्मी, क्यों टीवी की अम्मी? टीवी की अम्मी इम्तियाज आपा। इम्तियाज आपा, बहुत अच्छा जवाब दिया। तफरी, तफरी शगुफ्ता। अच्छा तफरी या खामोशी? तफरी। सादगी या तैयारी? बैलेंस। असफार या आराम? आराम ना हो, महफिलें या टीवी प्रोग्राम्स? महफिलें। मेकअप या ज्वेलरी? मेकअप। शाह खर्ची या बचत करना, किफायत शारी? दोनों चीज़ें हों, कंजूसी भी ना हो। अच्छा तोहफे, तहाइफ या कैश प्राइजेस? दोनों हो जाए। में मोहब्बत लगती है तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है, देना भी अच्छा लगता है। सफाई या बर्तन धोना? सफाई, बर्तन मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, चाय या कॉफी? चाय। चाय। हाँ भाई आपकी समझाते हैं। अब आप छोटी हो तो आप जरा इन चीजों को इतना नहीं समझती। तफरी या खामोशी? तफरी। सादगी या तैयारी? तैयारी। असफार या घर में बैठना खामोशी से? काम। तन्हाई? नहीं, तन्हाई नहीं। घूमना फिरना? बिल्कुल। ओके। महफिलें या टीवी प्रोग्राम्स? दोनों। मेकअप या ज्वेलरी? मेकअप। शाह खर्ची या किफायत शारी? खर्ची। तोहफा या कैश प्राइजेस? तोहफे। ओके। सफाई या बर्तन धोना? सफाई। चाय या कॉफी? चाय। ओके। गुफ्तगू या शेरो शायरी? गुफ्तगू। सहर आजम, आपसे कुछ सवाल रह गए थे। शरारती कौन है क्यों टीवी पे सबसे ज्यादा? क्यू टीवी पे सबसे ज्यादा जो शरारती है ना, मतलब ऑन स्क्रीन पे भी पता चलता है वो और ऑफ स्क्रीन पे सादिया काज़मी। हाँ। बबली कौन है? बबली? बबली भी मेरे लिए सादिया काज़मी ही है। दोस्ती कौन के लिए आप, दोस्त कौन है आपकी? ये तीसरा जवाब भी मेरा यही है। वैसे तो सभी हैं लेकिन ज्यादा जिससे मेरे मतलब करीबी जो है वो सादिया काज़मी। अच्छा, एंटरटेनमेंट या तन्हाई खामोशी? तन्हाई। सादगी या तैयारी? डिपेंड्स ऑन मूड। हैंग आउट, गोइंग आउटसाइड? असफार या बस रिलैक्स करना घर में, आराम? घर में आराम करना, रिलैक्स करना, क्योंकि कम ही मौका मिलता है। महफिलें या टीवी प्रोग्राम्स? दोनों, क्योंकि दोनों ही काम के ही इसमें आ जाते हैं। ज़ाहिर है मुझे अपने काम से भी बहुत मोहब्बत है, अब वो चाहे महफिलों की सूरत में हो या मेरे प्रोग्राम्स की सूरत में। बेहतरीन लिबास, मेकअप या ज्वेलरी? तीनों का बताना है? कोई एक जो सबसे ज्यादा तीनों में से जरूरी कोई है? एक। बेहतरीन लिबास। शाह खर्ची या किफायत शारी? किफायत शारी। तोहफा या कैश प्राइज? दोनों। तोहफा। सफाई करना, बर्तन तोहफा धोना या कपड़े धोना? ना बर्तन धोना ना कपड़े धोना। सफाई? ये बिल्कुल हाँ, मुझे सफाई सही है। चाय या कॉफी? चाय। स्वीट्स या कोल्ड ड्रिंक्स? स्वीट्स। आपकी समझाते हैं, सही है ना? आप रह गई थी ना, अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तफरी या खामोशी? मैं हाँ। खामोशी।
अरे वाकई ये गलत जवाब है। आई है सादगी या तैयारी, सादगी। निदा आसमान तो नहीं गिरा? असफार या आराम, लेकिन ये सच्चाई है। असफार जलजला आ रहा है। बाहर निकलना, हैंग आउट करना या घर में रिलैक्स करना, घर में महफिलें या टीवी प्रोग्राम्स, महफिल, अच्छा मेकअप, ज्वेलरी या अच्छा लिबास, उम्दा लिबास, अच्छा लिबास। शाह खर्ची या बचत करना, किफ़ायत-शारी, अगर किसी के लिए करना है तो शाह खर्च, तोहफे या कैश प्राइजेस, देने के लिए तोहफे और लेने के लिए कैश प्राइज। सफाई करना, बर्तन धोना या कपड़े धोना, सफाई करना, चाय या कॉफ़ी, चाय, अच्छा डिज़र्ट्स या मिठाइयाँ वगैरह जो होती हैं वो, या फिर ये बताओ कोल्ड ड्रिंक्स। डेजर्ट्स। डेजर्ट। अच्छा ये बताओ कि अगर कुछ नाम मैं लूँ तो जहन में क्या आता है? नाहिद अबरार साहिबा, नाहिद मुखलिस, बहुत प्यारी। इम्तियाज़ आपा, आपा, जलाल, रोब और बेहतरीन। पूरिया फ़हीम, बहुत प्यारी दोस्त। नौरीन फ़ाइज़, बहुत अच्छी दोस्त। अंबर, बस दोस्ती सीख लिया तुमने, हाँ। भी दोस्ती होगी। अंबर के लिए बहुत क्लोज्ड। सादिया, मेरी दो तरीके से मैं सादिया को, सादिया उज़ैर काज़मी की बात कर रहे हैं, तो सादिया को दो तरीके से मैं डिस्क्राइब करूंगी कि बहुत पुराना साथ, बहुत और बहुत करीबी साथ, बहुत सारी चीज़ें उससे शेयर की, और वैसे बहुत प्यारी। सादिया दानिश, हाँ, सेम सादिया का भी यही है, बहुत पुराना साथ और बहुत अच्छी और बहुत मुखलिस। सहर आज़म, सहर आज़म एक मोतबर और रिस्पेक्टेबल, ताबिंदा आपा, मोस्ट रिस्पेक्टेबल। निदा नसीम, बहुत बहुत प्यारी। जरमीना, जरमीना बहुत शरारती। जरमीना सबके बारे में क्या बोलोगी? पूरिया फ़हीम, नाइस पर्सन। अच्छा इम्तियाज़ आपा, इम्तियाज़ आपा, प्यारी आपा, नाहिदा आपा, सॉफ्ट स्पोकन और बहुत सलामत। प्यारी दोस्त जिनसे इंसान हर चीज़ शेयर कर सकता है। डॉक्टर Love your इम्तियाज़, answers. बहुत प्यारे खातून, सहर आज़म, बहुत ही अच्छी, पूरिया फ़हीम आपा, बहुत ही प्यारी, अंबर अशरफ, बहुत सादा, नौरीन फ़ाइज़, बहुत शरारती, सादिया उज़ैर, बहुत ही ज्यादा शरारती आपा। लेकिन शरारती। मेरे सामने थोड़ा सा शरारतें कम करती हैं, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़, बहुत प्यारी, माशाल्लाह। अफ़ज़ा नबी, खामोश तबा है। अल्लाह, या अल्लाह, ये कब हुआ? ये क्या हो रहा है? जी, मैं क्या सुन रही हूँ के मुकाबले में कमी हूँ। आई कांट बिलीव इट। माशाअल्लाह जनाब, इतनी अच्छी बातें चल रही हैं। अच्छा मैं कुछ सोच रही थी, सहर आज़म, अगर सहर आज़म ज़बीब भाई का कोई कलाम पढ़ती अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो कौन सा पढ़ती? और जो कभी आप यानी मैं आपको सपोज करवा रही हूँ कि आपका दिल भी चाहता कि मैं ये काश ये कलाम मैंने पढ़ा होता। अच्छा, ये हकीकत बात है कि दौर हाजिर के नात ख़वानों की अगर मैं बात करूं तो जिनका माशाल्लाह काम बिल्कुल ही मुनफरिद है, और जो यकीनन नए पढ़ने वालों के लिए या उनके साथ के पढ़ने वालों के लिए या तमाम ही पढ़ने वालों के लिए एक मिसाल की हैसियत रखता है। और उसमें जो नाम आते हैं, जैसे सरवर भाई का नाम ले लीजिए, सभी भाई का नाम ले लीजिए, तो ये शाह साहब का, ज़बीब मसूद साहब का नाम भी यकीनन उसमें सर फहरिस्त है। सारे ही कलाम वो जो पढ़ते हैं यकीनन उसको पढ़ना बहुत मुश्किल, उसको निभाना उनकी तरह बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये ऑप्शन दिया जाता कि उनके जो करियर में से या उन्होंने जो कलाम पढ़े हैं कि उसमें से कोई एक मैं ले लूँ, हाँ? हाँ। आपके सवाल का मेरा अंदाज यही है कि आपका मतलब यही है, मैं ले लूं या मुझे दिया जाता हाँ। और मैं पढ़ सकती थी, या मेरे इख्तियार में होता है कि मैं उनके करियर में से कौन सा कलाम हाँ मैं कौन सा कलाम मैं कौन सा कलाम लूँ, वो मुझे मिल जाता काश। तो वो एक ही है, और अहमद काज़मी साहब का सुभान अल्लाह। मैं उसके चंद एक शेर पढ़ती थी। और रंग थोड़ा ज़बीब भाई का ही आए, ये भी का रंग तो नहीं आएगा, वो जाहिर है थोड़ा मर्द कोशिश हैं, करें मैं कि वो हमें सुनने में हमें ऐसा लगे कि ज़बीब भाई पढ़ रहे हैं, थोड़ा जितना हो सके कोशिश कीजिए। अच्छा, ज़बीब भाई के अंदाज की बात की आपने, उनके अंदाज में तो जब मर्द भी पढ़ा करते हैं तो बड़ा कम वो रंग आता है। मैं तो फिर खातून हूँ तो ज़ाहिर आपको पता है कि बहुत मुनफरिद आवाज़, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कीजिए बिल्कुल।
बेवक़्तों बेमाया हूँ, तेरी महफ़िल में चला आया हूँ, तेरी महफ़िल में चला आया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। सादिया, दानिश, ज़रा दानिशमंदी से बताइए कि हमारे किसी बड़े सीनियर का पढ़ा हुआ कोई कलाम जो आप कहती काश ये सादिया ने पढ़ा होता। मैं अवैस रज़ा कादरी को बहुत पसंद करती हूँ और उनके ही सारे बचपन से ही, जब से ही होश संभाला, नात ख़्वानी की फील्ड में आई तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया। तो मैं उनका ये कलाम अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये पढ़ती जी। उनके जैसा तो नहीं पढ़ सकते, कोशिश कर सकते। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है ना, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है ना, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना। ये जो जगह थी ना, ये अवैस भाई की जगह। ये अगर सादिया लगाती, अब अवैस भाई कैसे महसूस करें ये हम नहीं कह सकते। अगर सादिया ये जगह लगा लेती, लगा लेती। अफ़ज़ा, अच्छा, मुझे ये बहुत प्यारा माशाअल्लाह। भी नात ख़्वानों के कलाम बहुत पसंद हैं, लेकिन आमिर भाई का जो है पढ़ा हुआ है कलाम मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और सहर के प्रोग्राम में मैं पढ़ भी चुकी हूँ इस कलाम को, और जब भी सुनते हैं ना इसके अशार दिल के बहुत करीब हैं, तो वही पढ़ना चाहूँ। मुफलिसी ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया, और जगमगाए न क्यों मेरा से दुरूं, जगमगाए न क्यों मेरा से दुरूं, एक पत्थर को आईना नगर मिल गया, मुफलिस जिंदगी। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। टाइम कम है, वरना मैं उम्मीद है कि आमिर भाई भी खुश हो जाएंगे, उम्मीद है हमें। आमिर भाई का लेकिन अंदाज ये ना, वो पढ़ते हैं ना जब वो ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, ये जो है ना, ये इनका, ये मैं अक्सर जो
उनको फॉलो करती अरे हूँ। वो हमारे कभी-कभी head है मुझ ना, में भी यंग आ वो जाए। हमें भी समझा रहे होते हैं ना कि जो पढ़ा ये होता है। चीज़ जो सबसे अच्छी है ना वो सादिया करती है। हाँ समझ, वो आज आ नहीं पाई। एक सादिया काज़मी और एक सहर आजम, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी छोटी सी सहर आजम की। प्लीज मैं नहीं कर इसी सकती, हवाले से मैं कैमरे पे नहीं कर सकती, कैमरे पे नहीं कर सकती। लेकिन बहुत अच्छा करती जरमीना आप ब्रेक लो और जरा तरन्नुम में ले सकती हैं। तरन्नुम नहीं, गलत। अच्छा, चले, सही। कैमरे के सामने नहीं, वैसे ले शहरबाजी की तरह। चलो जरमीना ब्रेक लेगी। आप देख रहे हैं ARYQ TV स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद कुर्बान। खूबसूरत बातों का सिलसिला रहेगा जारी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।